Warm greetings. Welcome to today's session on understanding the nuances of being women in architecture. The discussion on women in architecture is placed in the larger purview of being in the diverse fields of the built environment for those women who started their career with architecture education. The session is conducted with the support of Eco Development and Research Cell, a not-for-profit initiative of the environmental design consultants. My name is Mansi Bal Bhargav, and I'll be the host for the discussion today. I'm glad to start this conversation with women engaging in the practice and pedagogy of the built environment, especially understanding how they started, what happened, and how did they maneuver their life and decisions to bring themselves to the stage where they are. The aim of the study is to celebrate the presence and participation of women in shaping the built environment. The objective is to understand and document the biographical journey of women from practice, research, education, activism, and any other fields that they have chosen. Through the study, the intention is to acknowledge the contribution of women in the profession and bring forth the critical points that need to be addressed at individual, institutional, and collective level as what makes or breaks or tweaks the career of women architects in the country. The study on women in architecture profession is a call for action for all to realize the need for equitable architectural practice in order to advance towards more sustainability and a resilient built form. The study is based on the presumption of the profession being heavily patriarchal. In this research or study, we have applied a method called autoethnography, which in simple words means it's a life of their journey and our pen. Through this interaction, we wish to come up with a YouTube series and a coffee table book. That's the set outcome from this research. Today, for our discussion, we have Dr. Prabhjot Kaur, and I look forward to learning about her journey of life. And thank you so much, ma'am, for taking out time and agreeing to do this interaction. And I have been after you for quite some time, so I'm really looking forward. And once again, thanks a lot for agreeing. And just that you know that we are really trying to understand and share the worries and the wisdom by the woman, for the woman, of the woman in the built environment. In here, we are trying to learn about the endeavors of the woman in a regular, disciplined manner, like a master class. So before I invite you to speak on the platform here, let me just have a brief introduction to set it on record. Dr. Prabhjot Kaur is a vice captain in chief at the club NPC India. She retired as director from IKG PTU Mohali in 2012 after serving the architecture education for over 2 decades. She's practicing independently since 1987, and she holds a PhD from Department of Architecture Planning, IIT Roorkee. She's lifetime member of Council of Architecture, IIA, IIID, and many more associations, importantly, her own alma mater from Roorkee. So thank you so much, ma'am, for agreeing to take this interaction. And I hope you are fine if we are going to record as well as we are going to put this on live so that people are hearing you also, because you are already shared with the women who have been interviewed earlier. So thanks once again, and let me know when you are ready to take my questions. I'm ready, dear. Manasi, thank you so much. I'm looking forward to your questions. I would just like to add that my experience is more than 33 years, out of which I have practiced initially for 5.5 years. And during that time, I have more than 40 buildings to my credit. But because of my health as well as family issues, as I was also a visiting professor at that time, so I started doing the regular teaching work. So my get into that. 33 years as various positions in architectural institution in North India, especially Punjab. So I retired in 2021, not 12. I retired. Okay, sorry. I'm so sorry. No issues, no issues. Because I sent you my resume at the last moment. So that's why quickly. No issues, Manasi, go ahead.
Yeah, thank you so much. So that brings me to the start of the conversation here, and I hope you're fine if I take you back to when you were in high school and try to understand what kind of circumstances or family setting or friends you had around which encouraged you or which brought you to architecture. The main credit goes to my father, Mm-hmm. who inspired me to, when I was a small child, 6th, 7th standard में, to draw freely. है ना, चाहे देख के ड्रॉ करूं, चाहे कैसे भी ड्रॉ करूं, बट एक्सप्रेशन ड्राइंग का खुल के आ सके. माय फादर वाज एन इंजीनियर. ही वाज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर serving as the training officer at National Fertilizers. So he keeps me encouraged to read more when I was in my 9th, 10th. And then suddenly he arranged a meeting of mine with an IIT graduate at that time, who got married to one of his students. So he took me to her house and helped me interact with that female, a very young architect. And I was in my 10th, 11th standard. So that interaction really went very well. And I was quite impressed with the way she was managing her house, the way she kept her house, how he carries herself. It was a very inspiring for me to, so that helped me to decide, yes, this is one option I must explore. So when you came into architecture education, I would like to understand from you, because you are a little bit senior than me. How was it in the college? I mean, was there any discrimination between girl student, boy student? Because in my time, actually, we were more in numbers, first of all, girls, and also we were quite dominant, and both by ranking, both by being vocal. So we didn't really feel that there was something like being woman or a girl in architecture is going to be different when we graduate. How was it in your college days, in undergraduate? कभी कॉलेज में ऐसी डिस्क्रिमिनेशन नहीं लगी थी. हम लोग भी क्लास में 50% से थोड़ा लेस थे, मगर I joined architecture in 78 and graduated in 83 from Chandigarh College of Architecture. ऐसी डिस्क्रिमिनेशन कभी नहीं लगी थी. और 5 साल प्रैक्टिस करके जब पढ़ाना शुरू किया तो लड़कियों का नंबर और भी कॉलेज में बढ़ा हुआ था. कॉलेज में माहौल बहुत अच्छा था. कोई भी क्लास होती थी, कभी ऐसा फर्क नहीं महसूस होता था कि लड़के और लड़की में कोई ऐसे बड़ा फर्क है. इंस्टीट्यूशन लेवल पे बहुत ठीक ही था. हाँ. So when you आपने जब undergraduate complete किया, you went on to do your PhD, and I would like to understand कि आपको when did you realize कि it is going to be different if I am a woman in the practice or in the education, or did it really ever strike you in the early career days कि it is going to be different being woman in architecture? मानसी, मैंने ग्रेजुएशन किया 83 में. इमीडिएटली ग्रेजुएशन के बाद मैंने बहुत लीडिंग आर्किटेक्ट्स के साथ अमृतसर और चंडीगढ़ उनको असिस्ट किया. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. ऑन साइट काम भी बहुत मिला. मॉडल मेकिंग में बहुत हाथ अच्छा साफ था ड्यूरिंग कॉलेज डेज से. पर्सपेक्टिव वगैरह तब जब हाथ से बनते थे तो अच्छे से हो जाते थे, है ना. तो आई वॉज अ वेरी कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल एंड अ वेरी पैशनेट कि मैं प्रैक्टिस सेट कर ही पाऊंगी, है ना. 3-4 साल के बाद, शादी के बाद प्रैक्टिस शुरू की. हस्बैंड बीइंग सिविल इंजीनियर. काम तो बहुत मिला मगर पैसे नहीं. काम बहुत मिला, काम की कोई कमी मैंने नहीं महसूस की. डे 1 से ही मुझे प्रोजेक्ट मिले, मगर जब पैसे देने की बारी आती थी तो क्लाइंट बहुत डिले करके, बहुत कम पैसों में उसको लगता था कि बातें सी मार के लेडी के साथ चला जाऊंगा या चली जाएंगे हम लोग. तो पेमेंट एक्सट्रैक्ट करना वाज द टफेस्ट टास्क.
एंड मैंने तब भी ये फील किया कि एक तो पेमेंट लेना बहुत ही वो ऐसी स्किल है जो कॉलेज नहीं सिखाता। कॉलेज में मैनेजमेंट और ऑफिस मैनेजमेंट और आर्किटेक्चरल प्रैक्टिस में, प्रोफेशनल प्रैक्टिस में नहीं सिखाते। प्रोफेशनल प्रैक्टिस में भी सिखाना, और अगर स्टूडेंट साथ के साथ सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग की जगह जैसे एनडीआर होती थी तो लंबी देर के लिए काम करता था, तो उसको उसकी बारीकियां समझ आनी चाहिए थी, जो शायद वहां मुझे कमजोरी लगी अपनी, कि बेझिझक होके आप अपने काम के लिए काम को वैल्यू करो और काम के लिए पैसे मांगो। तो आप हस्बैंड की शैडो में शर्माते झिझकते रह जाते हो, और वो ब्रेक इवन पॉइंट नहीं बन पाता है ना। वो स्ट्रेस भी क्रिएट करता है और डिमोटिवेट भी करता है। दूसरी बात जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंटली रियलाइज हुई इन माय 5 years ऑफ प्रैक्टिस, कि कॉलेज जैसी चीजें सिखाता है और जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है कॉलेज डेज में, ऐसा प्रैक्टिस में कुछ नहीं। प्रैक्टिस में तो कोई भी क्लाइंट है तो उसको जो उसकी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन चाहिए, और विद इन बजट चाहिए, और विद इन टाइम फ्रेम चाहिए। लंबी चौड़ी बातों से कुछ नहीं होने का। ग्राउंड रियलिटी में वेरी प्रैक्टिकल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि मैं खुद को काफी प्रैक्टिकल समझती थी, मगर उससे भी क्विक लेस टाइम में काम देना, डिफरेंट चैलेंजेस लगे। मुझे लगा यार एजुकेशन बिल्कुल अलग जगह काम कर रही है और प्रैक्टिस बहुत अलग जगह काम कर रही है। ये मेरी 80s की रियलाइजेशन थी। So to train myself once again on these issues, मुझे मौका मिला, साथ के साथ मैं विजिटिंग हिस्ट्री पढ़ा ही रही थी, तो जब पोस्ट निकली मैंने अप्लाई किया टू रीट्रेन माई सेल्फ, कि चलो थोड़े दिन देर से फिर वैसे जो चीजों की कमी महसूस करती हूँ मैं खुद में, उनको थोड़ा और फाइन ट्यून करती हूँ, और फिर बाउंस बैक करूंगी। और फिर से क्योंकि बहुत इच्छा थी खुद की प्रैक्टिस की, तो मैं फिर से बाउंस बैक करके प्रैक्टिस में आऊँ। 88 से मैंने टीचिंग ज्वाइन करी। फिर मुझे ऐसा लगा अच्छा टीचर बनना है तो इतनी पढ़ाई से काम नहीं चलेगा। 16 years after my B.Arch, I dare to pursue my masters because I feel only a lighted candle can lit others. अगर मुझे स्टूडेंट्स को एक अच्छा लेटेस्ट चीज को पढ़ाना है तो मुझे खुद को लेटेस्ट पता होनी चाहिए। जो मैं एक्सपेक्टेशंस उनसे करती हूँ उस पे मुझे खुद खड़ा होके उनको दिखाना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा कि नहीं ये बहुत अच्छी चीज है। पढ़ाई और क्यूरियोसिटी और अच्छी चीजों के साथ अपडेट रहना एक अच्छी चीज है। तो मैंने मास्टर्स शुरू करी 16 years आफ्टर माय ग्रेजुएशन। इनिशियली डिफिकल्ट थोड़ा सा महसूस हुआ क्योंकि तब मेरे 2 बच्चे भी थे, बट मेरी डिटर्मिनेशन ने और मेरी फैमिली की सपोर्ट ने मुझे उसको बहुत अच्छे तरीके से पूरा करने दिया, और उसका बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट आया। जब मैंने उसके बाद आके टीचिंग शुरू करी और मेरी अपडेटेड नॉलेज ऑन एनर्जी, ऑन मेनी अदर इश्यूज, वो रुड़की से मैं करके आई मास्टर्स, तो उसका इफेक्ट मेरे स्टूडेंट्स पे बहुत ज्यादा पड़ा। और उसी पॉइंट से आगे मेरे जो बठिंडा कॉलेज के स्टूडेंट्स थे उन्होंने इमीडिएटली ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स को ऑप्ट करना शुरू किया। और वो हंसते थे कि अगर हमारे टीचर को पढ़ने की जरूरत है तो हमें तो है ही है ना। है। तो ये बहुत बहुत अच्छी पॉजिटिव बात हुआ। कही आपने। बहुत वैसे भी लर्निंग का कोई एज तो है नहीं, अब उसको फॉर्मल लर्निंग बोलिए या इनफॉर्मल लर्निंग बोलिए, तो फॉर्मल लर्निंग देना एक एजुकेशन में जरूरी भी हो जाता है। हाँ नहीं, तो बहुत इसलिए सारे टीचर लेते हैं इस चीज को, पर आपने देखा होगा बहुत सारे टीचर बहुत साल पुराने नोट्स उठा के ही घूमते रहते थे। अब मैं नहीं कह सकती, बट आई ओनली बिलीव अ लाइटेड कैंडल कैन लिट अदर्स। तो मैं फिर भी ये बात जानना चाहूंगी, क्योंकि ये जो हम इंटरेक्शन कर रहे हैं इट इज अबाउट बीइंग वुमेन। तो मैंने अक्सर देखा है कि मतलब देखा भी है और अपने रिसर्च से भी क्लियर आ रहा है कि एज अ वुमेन, एस्पायरिंग वुमेन इम्पोर्टेंटली, और क्योंकि हमारा इंटरेक्शन एस्पायरिंग वुमेन से हो भी रहा है, मैं ये जानना चाहूंगी कि हाँ, वी एक्चुअली टेक दिस रूट ऑफ सेल्फ एजुकेशन बहुत
बार बार मैंने भी अपना पीएचडी किया है 15 साल के बाद ग्रेजुएशन खत्म करने के। थोड़ा हर बार मुझे ऐसा लगा कि मैं ये मास्टर्स कर लेती हूँ तो मैं अपने ऑफिस के लिए ज्यादा यूजफुल हो जाऊंगी, मैं ये पढ़ लेती हूँ तो मैं अपने ऑफिस के लिए ज्यादा यूजफुल हो जाऊंगी। तो ये जो एक अर्ज अंदर वुमेन के बहुत ज्यादा है, तो वो हेल्प भी करता है उनको अपने आप को ग्रो करने में और प्रैक्टिस में रहने में। So, when you did your master's and then you went on to do your PhD, I still would like to understand, was it ever really hitting you, or was it coming in your mind that आपको ज्यादा मेहनत इसलिए करनी पड़ रही है इस रास्ते में क्योंकि आप एक महिला हैं, तो अपने आप को प्रूव करने के लिए ज्यादा मेटल की जरूरत है, और इट वाज सेल्फ ड्रिवन कि नहीं मुझे सीखना है, ये भी जरूरी है। मतलब मुझे बहुत लेट रियलाइज हुआ जिंदगी में, एक्चुअली पीएचडी तक तो मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ। इट्स वेरी रिसेंट कि मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, बीइंग वुमेन इज वेरी डिफरेंट इन द प्रोफेशन, जब मैंने ये रिसर्च शुरू किया। तो हाउ वाज इट यू विथ यू? मानसी, दो चीजें हैं इसमें। जी एक तो ये कि ये सेल्फ ड्रिवन इसलिए था कि मुझे लगता है मेल फीमेल पे नहीं डिपेंड करता। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एवरी ह्यूमन हैज दिस इंस्टिंक्ट टू नो मोर। यस अगर वो इंस्टिंक्ट किसमें जिंदा है तो वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली लर्निंग मोड में रहता ही है लाइफ। वो मेल हो या फीमेल हो फर्क नहीं पड़ता। हाँ लर्निंग इंस्टिंक्ट अगर उसके टीचर्स या उसकी फैमिली उसको किल कर देती है, इग्नोरेंस की वजह से उसे डांट फटकार दिया जाता है और उसे डिस्करेज किया जाता है, सिर्फ वही लोग नहीं पढ़ते। अदरवाइज लर्निंग बहुत नेचुरल प्रोसेस है, बहुत नेचुरल प्रोसेस। बट मैं ये भी दूसरी बात को भी सपोर्ट करती हूँ कि हमें इंडियन सोसाइटी ज्यादा मेल डोमिनेटिंग और पेट्रियार्चल होने की वजह से फीमेल के ऊपर एक किस्म का प्रेशर जरूर है। उसे सप्रेस करने की सोसाइटी कोशिश करती है। अगर वो थोड़ी सी ज्यादा एक्टिव होती है तो ज्यादा कोशिश होती है उसको सप्रेस करने की। कंट्रोल में रखने के लिए, नॉट बहुत थोड़े लोग होते हैं उसके सर्कल में जो अंदर से उसको सपोर्ट करते हैं। वैसे लोग भी होते हैं, वैसे लोग भी होते हैं जो इनर सर्कल में होते हैं। वो गिनती में चाहे कम होते हैं मगर होते हैं। मैं यहाँ तक पहुंचती नहीं अगर मुझे वैसे लोगों का साथ नहीं होता, नहीं मिलता। और पहले होता था फीमेल को कम सपोर्ट करती थी, पर मैंने ऐसा महसूस नहीं किया बिकॉज माई मदर इन लॉ वॉज माई बिगेस्ट सपोर्ट। उनकी मदद के बिना मैं अपने आप को ऐसा प्रूफ ही ना कर पाता। सो इनर सर्कल में शी वॉज माई बेस्ट सपोर्ट, ओनली बिकॉज वो मेरे बच्चों को देख पाती थी, इसलिए मैं डेयर कर पाती थी बाहर जाके अपने आप को प्रूव करना और ज्यादा से ज्यादा पढ़ना। बट हाँ, आपकी ये बात सही है, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा है कि हम फीमेल्स को सेम पोस्ट पे, सेम जॉब, सेम सैलरी पे भी काम में हमें बार बार प्रूव करना पड़ता है कि यस वी कैन डू इट, वी आर एज गुड और एज और इवन बेटर देन मेनी ऑफ आवर काउंटरपार्ट्स। ये कंपटीशन नहीं है, पर फिर भी इस रास्ते से हमको गुजरना पड़ता है। हाँ, इसको कंपटीशन पता नहीं हमने क्यों बना दिया। इस रेस नहीं में है ये कहीं ना कहीं, कंपटीशन, नहीं, पर ऐसा रेस में हो गया हमें, है, ऐसा हो गया है क्योंकि कहीं ना कहीं सक्सेस का डेफिनेशन भी एक पेट्रियार्कल डेफिनेशन है। जो बेंचमार्क सेट किया गया है वो एक पेट्रियार्कल है। हम डीप जब स्टडी करते हैं तो हमको रियलाइज होता है कि जब हम कोई चीज सक्सेस को कैसे डिफाइन किया जा रहा है तो उसके सारे एट्रीब्यूट्स मैस्कुलाइन हैं, सारे हाँ, एट्रीब्यूट्स मैं यही पेट्रियार्कल कह हैं। रही थी कि इस रेस में हमने अपना फेमिनिज्म बहुत लूज किया है। हमने बहुत, अपना सॉफ्टर वो पार्ट होल्ड करके रखना बहुत जरूरी होल्ड है। भी करके या हमने उसको किल कर दिया। जी वो कहीं ना कहीं दबा दबा घुटता घुटता सा रह गया। जी जी और जो डेफिनेशन है कि यस वी कैन डू एवरीथिंग अ मैन कैन डू, we never realize that they can't do many things which we can do। और वो हमने तो करके वो और कंपटीशन सुपर, उनको दिया ही नहीं। वो कंपटीशन एक्चुअली हमने हम उनको लोग दिया ही अपने आप को सुपर वुमेन बनाने की हमको जरूरत ही नहीं है, ये कहीं ना कहीं लॉस्ट हो गया है। वो नहीं। हाँ, हमको एक नेचुरल प्रेशर समाज में आ गया, स्पेशली हम लोग ज्यादा पढ़ लिख गए तो हमको सेल्फ एक्सपेक्टेशन भी है,
और हमको घर भी एटलीस्ट देखना है, तो मानसी ये सारी चीज होती है। हमारी जनरेशन को, यू आर यंगर, मच यंगर जनरेशन देन मी, वो दिख ही रहा है आपको मेरी I was उससे। 72 born, so not that younger generation. So, Still you are more than a decade younger to me. So हम्म, मानसी, जो हमारी जनरेशन से पहले वाली जनरेशन वर्किंग ही नहीं थी। हाँ None of my elder generation, mother-in-law, none of them were working. हाँ We started the work. So हाँ हमने उसको बहुत ज्यादा पहले फेस किया और पे वे एक किया आप लोगों की जनरेशन के लिए एक बेटर हाँ, एनवायरनमेंट क्रिएट करने। एब्सोल्युटली। तो हम फोर फ्रंट में पहली वो जनरेशन थी जिसने उनको उस चीज को ज्यादा एक्सेप्ट किया। अब एक्सेप्टेड मतलब लोगों में ये एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा हो गई है अब कि हर लड़की काम करेगी। काम करे, पेरेंट्स चाहते हैं, तो वो सबसे बड़ा चेंज है। हाँ, पहले पेरेंट्स ये पेरेंट्स चाहते थे कि पढ़ाते लड़की भी को हैं। पढ़ा लिखा के शादी करा देंगे, अब पेरेंट्स खुद चाहते हैं कि लड़की अपने पैरों में खड़ी हो जाए। तो ये बहुत बड़ा समाज में चेंज है पिछले 30-35 सालों में। बिल्कुल बिल्कुल, 35-40 सालों में हम पढ़ भी जाते थे, पेरेंट्स चाहते भी थे, तो हमारी जुबान नहीं चल पाती थी, हम अपने आप को उतनी स्ट्रांगली बता नहीं पाते थे जितना अंदर से जी फील करते थे। और आज की जनरेशन में देखती हूँ जो फील करती है वो कह पाने की हिम्मत भी रखती है। हम कहीं वो बिल्कुल। हिम्मत में हमारी, क्योंकि हम पहली जनरेशन थे ना, हमसे पहले कभी किसी ने काम ही नहीं किया था, तो हमें अपनी बात जो रखनी होती थी वो बहुत हम्बली, बहुत रिक्वेस्टिंग मोड में हमें रखो। As we can demand, even with parents. I definitely agree on that. We can fight it out also with parents, to be honest, with anybody for that matter. एक उम्र के बाद तो as a woman we also do that because we give a damn to everything and we want to set our values very clear. We want to walk the path which we wish to. So that also gives a lot of courage to fight it out for your own thinking to be established. God has really bestowed us with numerous powers. जी जी जी, उसको रियलाइज करना जरूरी है। उसे बिल्कुल। रियलाइज करना, बाहर का समाज कितना भी आपको सप्रेस करे, इफ यू हम्म अंडरस्टैंड दैट गॉड हैज क्रिएटेड यू स्पेशली, हम्म, he has given extra effort in creating you, so चीजें हाँ। फिर थोड़ी आसान हो जाती। हम्म let me ask a very simple question. आपने already laid the setting for it when you said कि your mother-in-law was a big support and all. I'm sure there are more people and there may be plenty of people who have influenced your life or who have inspired you for the way you conduct your design as well as your practice. I mean, in terms of practice, what I mean is both professional practice and educational practice. So, would you like to share some of your people, some of the ways or some of the people who inspired you and your work? Manasi, I feel myself lucky because I have worked with Mahinderjeet Singh of Amritsar. Mm-hmm. ये इनिशियल फेज में उनका टेक्निकल एक्यूमन, ही वाज पहले पढ़ाते रहे वो भी रुड़की में, यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की में, और उनकी प्रैक्टिस में बहुत क्लैरिटी और प्रोजेक्ट में बहुत माइन्यूट डिटेलिंग होती थी, तो उसने मुझे इनिशियली बहुत इंस्पायर किया। फिर मैंने नमिता सतनाम सिंह, वेरी Ooh. रिनाउंड प्रैक्टिस इन चंडीगढ़ के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। Mm. तो उन्होंने डे वन से ही मुझे साइट पे भेजना शुरू किया, और एक इनर कॉन्फिडेंस नमिता मैम ने मेरे में रखा कि, है ना, तो उसने मुझे बहुत हेल्प किया टू एस्टेब्लिश माई सेल्फ। उन्हें जब पता लगा मैं साथ साथ प्रैक्टिस करती हूँ तो उन्होंने मुझे इनकरेज किया, डिस्करेज नहीं किया। मैंने फिर फुल फ्लैज अपनी प्रैक्टिस शुरू करी तो उन्होंने मुझे बहुत बेस्ट विशेस दी। सो इन दो प्रैक्टिसेस का जिनके साथ मैंने थोड़ा लंबा टाइम काम किया है, मैंने और कुछ लोगों के साथ थोड़ा थोड़ा टाइम काम किया है, मगर ये दो बड़े नाम थे जिनके साथ मैंने काम किया इनिशियल ईयर्स ऑफ माय करियर। तो इनका स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रहा मेरी वर्किंग स्टाइल पे। और अगर मैं टीचिंग की बात करूं तो अच्छे टीचर हर एक को जिंदगी में मिलते हैं, मुझे भी मिले, जी, मगर जो टीचर नहीं पसंद आते कई बारी वो बहुत कुछ सिखा जाते हैं, what not to do, not to do. I'm one of my not favorite to topics do. in life. I got such teachers as well.
जो बहुत आपको डिस्करेज करते हैं, बहुत ज्यादा डिस्करेज करते हैं। तो वैसे टीचर मुझे टीचिंग के बारे में बहुत कुछ समझा गए। कुछ टीचर बहुत अच्छे भी मिले, बहुत इंस्पायरिंग भी मिले। मैं बहुत बार उनको बहुत याद करती हूँ, है ना। अगर मैं नाम अगर हो तो मैं प्रोफेसर शंकर जो IIT रुड़की के हैं, क्लैरिटी ऑफ थॉट और उनका वे ऑफ टीचिंग और उनकी प्रिसीजन ऑफ टीचिंग, वो एक हर स्टूडेंट के अंदर एक फ्यूल तो होता ही है, गॉड गिफ्टेड फ्यूल होता है, उसे चिंगारी तो देनी पड़ती है। तो वो चिंगारी देने में बहुत सक्षम थे, इसलिए मैं उनको बहुत याद। जी जी जी। आपके इतने साल हो गए हैं, ओवर 3 decades ऑफ प्रैक्टिस, आई एम श्योर देयर आर सम नंबर ऑफ डिसीशंस आपने जो लिए होंगे, काफी सही गलत वो तो समय ही बता पाते हैं, बट सम डिसीशंस जो आपने लिए विच चेंज्ड योर लाइफ और विच चेंज्ड योर वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ एंड विच आल्सो हेल्प्ड यू चार्ट द पाथ विच यू हैव, और आप आज जहाँ हैं, तो प्लीज शेयर करिए। थोड़ा सा क्वेश्चन को और क्लियर करूं मानसी। सिंपल डिसीशंस बोलूंगी, पर कई डिजाइन बार और इन डिसीशन लाइफ। सही गलत भी हो सकते हैं, हाँ पर हाँ जीवन में हम कई सारे डिसीशंस लेते हैं, ये करना है नहीं करना है, ये करते हैं नहीं करते हैं, जिससे कि हमारे जीवन में काफी बदलाव आता है, और जिससे कि हम बेसिकली हमारे लाइफ का एक रास्ता भी निकलता है या बंद हो जाता है, हाँ जिसके मानसी। कारण आज हम जहाँ हैं बेसिकली हाँ अब वापस चेंज नहीं कर सकते, बट मानसी, सम लाइफ चेंजिंग डिसीशंस। प्लीज गो अहेड। मानसी मेरे लिए तो लाइफ एक चैलेंज की तरह ही थी, और जी मैंने हर समय उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके मैं चलती गई बस। जहां हाँ हाँ रुकावट आई मैंने रास्ता ही बदल लिया। और हाँ मेरी बड़ी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन थी कि जहां जैसे मैं प्रैक्टिस करना चाहती थी, मगर बहुत सारी रीजंस की वजह से कुछ कमियां मुझे खुद में महसूस होती थी, कुछ मुझे घुटन महसूस होती थी, कुछ हाँ मुझे हाँ है ना प्रेशर्स महसूस हाँ। होते थे। बहुत हेल्थ के इश्यूज शुरू हो गए थे बहुत यंग एज में। अच्छा। प्रैक्टिस छोड़ना मेरे लिए बहुत पेनफुल था, बहुत हाँ। पेनफुल था। बट फिर हम्म। मुझे लगा नहीं, मैं री बाउंस बैक करूंगी, रीट्रेन करूंगी। मगर उस रास्ते पे जब चली, टीचिंग के रास्ते पे, तो मुझे वहां भी हम्म। कई चीजें बहुत अच्छी मिली। मे बी मेरे फादर और मेरे फैमिली में मेरे और सीनियर्स टीचिंग में थे, तो मुझे हाँ। भी एक इनकलकेशन सी थी मेरे अंदर। तो हम्म। मैं बस फिर बढ़ती चली गई। जहाँ हम्म। रुकावट बनी मिली वहां मैंने रास्ता बदल लिया पानी के और जैसे। नए हाँ, और पानी के निकल लिए, जैसे। और निकल लिए। और ये मानना भगवान पे बड़ा भरोसा था कि वो एक रास्ता बंद करेगा तो दो तीन चार खोलेगा। ये मुझे हाँ। एबिलिटी चाहिए देखने की कि मुझे किस हम्म। तरफ को निकलना है। आप जब जॉब हाँ। में होते हैं, आपकी कई बार प्रमोशन रुक जाती है, तो अगर वहां ग्रज करते रहेंगे तो ग्रज ही रह जाएगा। और अगर स्टडी लीव लेके निकल जाएंगे तो पढ़ाई भी हो जाएगी, वो 2 साल का टाइम भी निकल जाएगा, और जब वापस आएंगे आप ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, अपनी प्रमोशन को राइटली डिमांड कर सकेंगे और आगे निकल जाएंगे बिल्कुल। सो मुझे कभी इतना ऐसा अच्छा लग रहा है आपसे ये सब बातें सुन के, एक्चुअली यू हैव लिव्ड द लाइफ जो हम यंगर जनरेशन को बताना चाह रहे हैं थ्रू दिस कॉन्वर्सेशंस। तो एक एनीवे आपकी बातों से को सुन के लोगों को ये महसूस तो होगा ही कि everybody has to go through ups and downs in life. It's just that how you make decisions, how you make choices. तो आपकी बात से सुन के मुझे ऐसा लग रहा है पानी के जैसे, जैसे पानी बह रहा है, इधर पत्थर आ गया उधर चले बिल्कुल गए। बिल्कुल मानसी, बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं मैं भी महसूस करती हूँ कि मैं पानी की तरह हूँ। कितना भी बड़ा पत्थर आ जाए, कहीं भी रोक लो, स्टिंक भी पानी शुरू को तो होगी, तो रोक मैं नहीं कहीं ना सकते। कहीं से रास्ता निकालने की कोशिश हाँ जरूर लगी हाँ। रहूंगी, और वो रास्ता निकल भी जाएगा। बिल्कुल, मैं बहुत आपकी बातों को रिलेट कर पाती हूँ, क्योंकि एक्चुअली किसी का भी जीवन इतना आसान तो है ही नहीं। एक्चुअली आसान जीवन होगा तो मजा भी नहीं है, और होता भी नहीं है, मैं दिन है उसको तो रात है। मानसी, मानसी जितने लोग मुझे जानते हैं, अभी भी अगर ऑडियंस में होंगे कुछ लोग मुझे जानते होंगे, तो यूट्यूब बड़े में मेरे है, फ्रेंड्स लाइव ये है। ये इस हाँ बात को समझते हैं कि मैं उनको कहती हूँ ये जो रुकावटें आती है ना, वो दाल में तड़के की तरह है। जैसे तड़के बिना दाल स्वाद नहीं लगती ना, ऐसे ही लाइफ हाँ में अप्स एंड डाउन्स ना हो, और रोज एक नया चैलेंज ना हो, रोज कुछ हंसने रोने को ना हो, कुछ करने को ना हो, तो जिंदगी बड़ी बेरुखी, मतलब बिल्कुल जैसे उबली हुई दाल होती है ना, वैसे सी हो जाए
बहुत अच्छा एनालॉजी दिया दाल का. And as a woman, we have to always be, clinged to the home affairs. And वो आपकी बातों से एकदम साफ महसूस होता है. तो आपने एक पहले भी बात रखी थी, बैलेंसिंग योर लाइफ एंड वर्क. आई वुड स्टिल लाइक कि आप थोड़ा सा उसको इलेबोरेट करें, क्योंकि एक आर्किटेक्ट की लाइफ बड़ी एडवेंचरस होती है. कि टीचिंग भी चल रहा है, प्रैक्टिस भी चल रहा है, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, थोड़ा राइटिंग भी चल रहा है, थोड़ा यहाँ भी चल रहा है. तो आपका थोड़ा एक मसालेदार जो आपकी लाइफ है, वुड यू लाइक टू जस्ट गिव अस अ स्लाइस ऑफ इट इन दिस मैंने कॉन्वर्सेशन? प्रैक्टिस को फिर थोड़ी तवज्जो कम देके टीचिंग हाँ. को प्राइम माना, पढ़ना पढ़ाना पे बहुत ज्यादा पोस्ट फोकस PhD, रखा. was it post पोस्ट PhD? Are you talking about post PhD? Are you talking about post PhD? पोस्ट मास्टर्स ऑल्सो, पोस्ट Okay, टीचिंग. post. वंस आई ज्वाइन टीचिंग, प्रैक्टिस कर रही थी तो 100% प्रैक्टिस में थी. हाँ. उस समय बहुत तकलीफ हुई, बहुत तकलीफ हुई, मगर कोई और चारा नहीं था. रास्ता निकालना था मुझे, जिंदगी में आगे हाँ. बढ़ना था. तो लगा था कि इस रास्ते से निकलूंगी तो आगे जाके इसी रास्ते को कनेक्ट कर जाऊंगी, पर वापस हाँ. रास्ता नहीं मुझे मिला. हम्म. तो मैं इसी रास्ते पे निकलती गई टीचिंग के लिए. तो मेरे लिए हम्म. मेरे स्टूडेंट्स, मेरा खुद का पढ़ना, सब कुछ हाँ. अच्छा था. फैमिली में ठीक सपोर्ट थी. मानसी बिना हम्म. फैमिली के सपोर्ट के कोई फीमेल आगे नहीं बढ़, नहीं बढ़ सकते. एटलीस्ट मैं तो ना पढ़ पाती अगर मुझे इतनी हाँ. स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फैमिली की ना होती. तो मैं जो हाँ. आज हूँ वो नहीं हो. सो बहुत सारा क्रेडिट. माँ ने तो मुझे BR कराई, और मेरे मदर इन लॉ ने मुझे मास्टर्स भी और मुझे हाँ. PhD भी कराई, और मुझे बहुत ज्यादा प्यार भी दिया. सो जी. क्रेडिट उनको जाता है, बहुत ज्यादा क्रेडिट जी. जाता है. हाँ. जो आपका मेन क्वेश्चन है कि कैसे हाँ. बैलेंस किया, तो अब क्योंकि मैं पोस्ट रिटायरमेंट भी PhD के स्टूडेंट्स को गाइड करती हूँ, तो मैं बहुत बार कहती हूँ कि माँ अगर बाहर वर्किंग है तो उसके पास टाइम कम है, पर अगर उसे ये समझ हो ना कि बच्चे को कैसे क्वालिटी टाइम देना है, बच्चे को या फैमिली को कैसे क्वालिटी टाइम देना है ना. तो उसके लिए मैं आपके साथ शेयर करते हुए मुझे लगेगा ठीक कि ये समझ होना हर फीमेल में जरूरी है कि कौन सी चीज प्रेशियस है और कौन सी चीज प्रेसिंग है. दो चीजों हाँ. में फर्क है. आपको बहुत प्रेसिंग हो सकता है कि गेस्ट आ रहे हैं, खाना टेबल पे लगना चाहिए. बहुत प्रेसिंग हो सकता है कि क्लास का टाइम हो गया और आप घर से नहीं निकले, है ना. मगर बहुत प्रेशियस 1 मिनट हो सकता है कि बच्चा आपसे प्यार मांग रहा है और आपको ये समझ नहीं आ रहा कि वो जस्ट सिर्फ एक हग ही तो मांग रहा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा, और उसमें 30 सेकेंड्स भी नहीं लगते. तो कुछ चीजें हैं जिंदगी में जो प्रेशियस हैं, कुछ चीजें हैं जो बहुत प्रेसिंग है. तो अगर इस डिफरेंस को समझ पाओगे तो इतना मुश्किल नहीं है. ये जब मुझे ये डिफरेंस समझ आया ना, तो मैंने हर टास्क के लिए देखा कि ये प्रेसिंग है कि ये प्रेशियस है. अगर कोई चीज चैलेंज बिटवीन प्रेशियस एंड प्रेसिंग में आया तो मैंने हमेशा प्रेशियस को चूज किया. और दो चीजें दोनों प्रेसिंग थी तो जो ज्यादा प्रेसिंग थी उसको चूज. तो लाइफ इज चॉइस बिटवीन मेनी टाइम दो चीजें, मेनी टाइम 4-5 थिंग जगलिंग. लाइफ इज मतलब जगल है. तो आपको कैसे जगलिंग करनी है वो आपको देखना. पर हाँ, inner ability God has given us ample strength to know these things. कॉन्शियस डिसीजन होने चाहिए. डिसीजन गलत या ठीक होते हैं, डिसीजन तो डिसीजन होते हैं. एंड हमारी जो अच्छी जजमेंट बनती ही गलत डिसीजन लेने के बाद. हम गलतियां करते हैं तो अच्छे से सीखते हैं. तो गलतियां करने से डरना नहीं चाहिए, कभी नहीं डरना चाहिए. गलतियां करने में शर्म भी नहीं होनी चाहिए. हाँ, बिल्कुल. और एक्सेप्ट करना कि गलती हुई, वो भी बहुत जरूरी है. हाँ, हो गया. गलती हुई तो वो गलती होने जरूरी के है, बाद तभी अगर ह्यूमिलिटी आएगा. हम बाउंस बैक कर जाएं और गलती करने के बाद खुद को सुधार पाए, फिर नई गलती करने के लिए तैयार हों और फिर आगे बढ़ने के लिए तैयार हों, फिर एक और गलती करें और फिर आगे बढ़े. बिल्कुल. मेरा यहाँ एक ट्रिकी सवाल है आपसे, एंड दैट्स अबाउट मेनी ऑफ द टाइम इन दिस patriarchal profession we have seen that most of the well-known male architects are actually supported by their female counterparts, and it's a established fact, not written much, but it happens. Most of them, not all of them.
What do you think? Does it make a difference to have a spouse from the same profession or not have a spouse from the same profession for a woman to make her career better or become more successful? जो अभी तक तो पेट्रियार्कल डेफिनेशन ही है सक्सेसफुल का, तो आपको क्या लगता है कि डज इट मेक अ मैंने डिफरेंस? आपसे कहा मेरे हस्बैंड सिविल इंजीनियर हैं, ये जी। शो करता है कि मैंने तभी डिसाइड किया था कि एक आर्किटेक्ट के साथ मुझे शादी नहीं करनी, क्योंकि वहाँ क्लैश क्लैरिटी होगा। थी आपको। बहुत बहुत क्लैरिटी थी, बहुत क्लैश होने वाला है, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड हूँ, तो क्लैश होगा ही होगा, तो वो बात बनेगी नहीं। मुझे अगर प्रैक्टिस करनी है तो खुद के बलबूते पे करनी है, और जो स्ट्रक्चरल वाली जो सारा एस्पेक्ट है वो कुछ ठीक से हो पाएगा अगर प्रोफेशन ऐसा चूज किया जाएगा। 40 साल से ज्यादा हो गए हमारी शादी को, तो प्रैक्टिस हम ज्यादा नहीं कर पाए, पर जितनी करी अभी मैं लुक बैक करती हूँ अपनी बिल्डिंग्स के ऊपर, जो स्कूल्स या फैक्ट्रीज डिजाइन की, जो रेजिडेंसेस भी डिजाइन किए, तो मुझे आज भी वापस उनको देख के लगता है कि मैंने जस्टिफिकेशन की जितनी मेरी समझ थी उसके हिसाब से। हाँ हाँ वो मुझे वो सेटिस्फेक्शन है। मैंने बहुत मार्क्ड, बड़ी इनोवेटिव बिल्डिंग ना दी हूँ, मगर बहुत फंक्शनल बिल्डिंग्स दी। जी जी। बस तो हाँ उसमें प्रैक्टिस मैंने बहुत लंबी चौड़ी नहीं की, इन 5 साल बहुत फोकस होके प्रैक्टिस की। फिर चैरिटेबल काम, कोई गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद का कोई काम, जहां भी कहीं मुझे मिला काम, मैंने उतना काम किया। और मैंने टीचिंग, और टीचिंग में जी। भी रिसर्च की, 45 पेपर्स, रिसर्च पेपर्स टू माय क्रेडिट। मेनी ऑफ माय हम्म 14 PhDs हो गई हैं मेरे अंडर गाइडेंस में। बहुत सारे मास्टर्स के बच्चे हैं, बहुत सारे BR के बच्चे हैं। तो जी। मुझे वहाँ एक बहुत सुख वाली फीलिंग है कि यस, आई हैव डन जस्टिस टू माय लाइफ। You have done real construction. You have constructed the future I have society. constructed architects. I have constructed architects. And मैं बड़े जोर से कहती हूँ अगर वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बड़े हाँ रिप्यूटेड आर्किटेक्ट्स जो हैं नॉर्थ रीजन के, हाँ वो मेरे स्टूडेंट्स हैं और मुझे बड़े हाँ। प्यार से मिलते हैं, तो मुझे बहुत फख्र होता है उनके ऊपर। जी और मुझे लगता है एब्सोल्युटली। लोगों ने बिल्डिंग्स बनाई, मैंने आर्किटेक्ट्स बनाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, देयर इज नो टू मैंने डाउट अबाउट आर्किटेक्चर इट। का मैंने उनको कुछ पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया ज्यादा, मगर मैंने लाइफ का उनको जरूर पढ़ाया। आगे एब्सोल्युटली। बढ़ते रहने की एबिलिटी मैंने उनको जी के दिखाई। जी। एक्चुअली एक टीचर का काम भी यही है कि हम उनको एक अच्छा इंसान बनाना सिखाएं। उसके साथ में वो थोड़ा आर्किटेक्चर सीख गए हो तो बोनस है वो। वो बोनस है, मैं बिल्कुल वो बिल्कुल, मैं बोनस। इस बात पे विश्वास रखती हूँ और क्योंकि मेरा भी हमेशा वैल्यूज ये बिल्ड करना, हाँ, अप्रोच। राइट बिल्कुल वैल्यूज बिल्ड करना और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना। एब्सोल्युटली। मेरे पिछले तो मतलब 33 साल में 15 साल तो मेरे बहुत डेडिकेटेडली इसी चीज को अ, चले गए कि मैंने हर स्टूडेंट को कहा कि तुम स्पेशल हो, समझो, यू आर ए ट्रेजर इन योरसेल्फ एंड यस यू हैव द की। जब तक तुम उस चाबी को नहीं घुमाओगे, तुम्हें ट्रेजर का पता ही नहीं लगेगा। तो बिल्कुल। चाबी को घुमाना सीखो। चाबी कैसे घूम सकती है? चाबी तुम्हारे साथ जुड़ने से ही तो खुल सकती है। सो खुद के साथ जुड़ना कैसे है और कैसे आगे बढ़ना है, मेरा बहुत सारा फोकस है। बिल्कुल और बहुत अच्छा बच्चे कर रहे हैं, मुझे उसकी बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन। एब्सोल्युटली, टीचर्स के लिए सबसे और पेरेंट्स के लिए भी सबसे और बड़ा वो प्राइड होता है इतने कि नेक्स्ट सालों से जनरेशन। अपने प्रोजेक्ट जब लॉन्च होते हैं तो उसकी वीडियोस मुझे भेजते हैं, कुछ हाँ उनके लैंडमार्क उनकी लाइफ में होता है तो मुझे भेजते हैं। तो ये अपने आप में ये शो करता है कि उनके लिए मैं मायने रखती जी बिल्कुल, एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है एंड हूँ। इट मैटर्स। एब्सोल्युटली, नो टू डाउट्स अबाउट इट। अब आपने इतने सालों में जब आपने टीचिंग किया है और प्रैक्टिस भी किया है, रिसर्च भी किया है, आई एम श्योर आप आपका ये, क्योंकि दो तीनों ही चीजें कोलैबोरेटिव अप्रोच होता है, कोई अपना इंडिविजुअली तो होता नहीं है। अपना बिल्कुल। प्रोफेशन ही कोलैबोरेटिव प्रोफेशन है। तो आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वो मैन एंड अ वुमन approaching design and as well as managing business. So business approach और डिजाइन अप्रोच में आपके हिसाब से मैन और मोस्ट ऑफ द मैन एंड मोस्ट ऑफ द वुमेन में क्या बेसिक डिफरेंस होता है?
मानसी, जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है ना, तो समाज जैसे लड़कियों को पालता है और समाज जैसे लड़कों को पालता है इन जनरल, वही फर्क है। लड़की को ब्रेड विनर की तरह पाला ही नहीं जाता, लड़के को पाला जाता है। लड़का छोटी उम्र से ही ये समझता है कि मुझे ये कुछ करना है। अगर लड़की को वैसे पाला जाए तो कोई फर्क ना हो ज्यादा, पर क्योंकि हमारी परवरिश अलग होती है, इसलिए बिजनेस एक्यूमन लड़कों में ज्यादा एस्टेब्लिश हो पाता है देन लड़कियों से। लड़कियों को मेहनत करना, ये करना, वो करना, सपोर्टिंग रोल में कितना कुछ करने में सेटिस्फेक्शन की फीलिंग की सेंस दी जाती है। बिजनेस एक्यूमन नहीं सिखाया जाता ना। और ये बिजनेस एक्यूमन फादर ने सिखाना, मदर के पास तो खुद के पास नहीं होता। तो ये अगर बिजनेस एक्यूमन में मेल इसीलिए आगे निकल जाते हैं क्योंकि फाइनेंस को वो ज्यादा समझते, इकोनॉमिक्स को वो हमसे ज्यादा समझते। सिर्फ मैथमेटिक्स ही नहीं है लाइफ, फाइनेंस जो है उसकी और बिजनेस की जो एबिलिटी है वो मेन एक्सेल करता है हमारे समाज में। वो मे भी हमें पता है कि पेट्रियार्कल है सोसाइटी, इसलिए तो बच्चियों पे जब वो बच्चियां हैं तो भी तभी से उनको अगर एक्सपोजर मिले या चीजें मिले तो थोड़ा फर्क पड़ सकता है। पर अभी तो बिजनेस एक्यूमन मेल में और पैसे लेने की एबिलिटी, मैंने आपको कहा प्रैक्टिस छोड़ने का बहुत बड़ा कारण था कि मैं पैसे नहीं, कितना भी काम करने के बाद, कितना भी प्रोजेक्ट पे मेहनत करने के बाद जो सस्टेन करने के लिए चीजें चाहिए वो नहीं मिल पाती थी, इसलिए प्रैक्टिस छोड़ी। मैं तो आज भी स्ट्रगल करती हूँ टू बी ऑनेस्ट टू रिकवर। जी, तो डिजाइन अप्रोच में आपको व्हाट डू यू थिंक आर द मेजर डिफरेंसेस व्हिच यू हैव कम अक्रॉस? जो मेंटल एबिलिटी है, जो इनोवेटिव थॉट्स है, जो इमेजिनेशन पावर है, वो शायद फीमेल की मेल से भी थोड़ी ज्यादा इमेजिनेशन पावर ऑफ तो यहाँ बैलेंस हो जाता है। थोड़ी ज्यादा है। पर मेन ज्यादा प्रैक्टिकल होने की वजह से और क्लाइंट जो मांग रहा है उसको सेटिस्फाई करो और आगे चलो, जब मौका होगा तो इनोवेशन भी कर देंगे, चीजें बना देंगे। तो उनकी अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ डिफरेंट होती है देन मेन। और फीमेल को अगर अपना हक और वो चीज चाहिए तो मानसी मैं बहुत स्ट्रांगली कहूंगी कि अगर हर इंस्टीट्यूशन में लड़की तो 50% से भी ज्यादा है, अब तो ज्यादा है। प्रैक्टिस में वो 3% भी नहीं रह जाती, नहीं रह जाती, इसीलिए ये इंटरेक्शन हो रहा है। तो वो कहाँ गायब हो जाती है, वो क्यों गायब हो जाती है? अगर बहुत मैं सारी एजुकेशन में भी चली जाती है, बहुत सारी एजुकेशन में बी डोमिनेट एज वुमेन। नहीं, पर आप अगर ये देखो कि 2 लाख आर्किटेक्ट है इंडिया में, तो अगर 50-50 की रेशो में देखी जाए तो लाख लड़के लाख लड़कियां, है ना? 1 लाख में से तो 5,000 भी नहीं एजुकेशन में हो सकती, क्योंकि 500 ही तो कॉलेज है जी। 500 कॉलेजेस में 5,000 से ज्यादा आर्किटेक्ट नहीं हो सकती लड़कियां पढ़ाने वाली। ये मैं बहुत बड़ी फिगर बोल रही हूँ। ब्रॉड बाकी जो चली गई वो कहाँ गई? तो मेरा जवाब समझने की कोशिश करूंगी तो मानसी पता लगेगा कि अगर हमने लड़कियां जहां अब हैं, जहां भी वो है, अगर उन्हें उसके हिसाब से ट्रेनिंग होने दी जाती ना दी होती तो कहीं वो बेटर प्लेस्ड होते हैं। हमारा जो ये मानना है कि 5 साल पढ़ा कर दिए तो वो आर्किटेक्ट बन गई और वो प्रैक्टिस कर लेगी, वो गलत है। अगर हमने एक मिड वे ऑप्शन दिया होता उसे बाहर निकलने का और उसे फ्रीडम दी होती चूज करने की अपना कैरियर पाथ, तो बहुत सारी लड़कियां 6 सेमेस्टर 3rd ईयर के बाद, आप देखो, आपको जितना 5 इयर्स के बाद थीसिस के बाद पता है, अगर एक मिनी थीसिस 3rd ईयर के बाद होता और इतनी कैपेबल होती जितने प्रोजेक्ट वो आजकल कर रही है, इंटीरियर डिजाइन हो गया, छोटे प्रोजेक्ट हो गए जहां स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, ये चीजें वो चीज, तो अगर उसको ऑप्शन होती और वो उस फील्ड में जा पाती। मैं कुछ एग्जांपल लेके बात करती हूँ कि कोई बहुत अच्छा राइटिंग कर सकती है लड़की, है ना? तो जर्नलिज्म में 3rd ईयर ऑफ आर्किटेक्चर के बाद वो जर्नलिज्म का अगर 2 साल की मास्टर्स करके 5 साल में जर्नलिस्ट बनी होती तो कहीं बेटर बन पाती।
अगर वो एजुकेशन सेक्टर में गई होती तो कहीं बेटर बन कर पाती। अगर टूर ट्रेवल इंडस्ट्री में गई होती, 3 years ऑफ आर्किटेक्चर, एक समझ आर्किटेक्चर की, और टूर ट्रेवल कंट्री का जो टूरिज्म है वो बिल्डिंग्स पे डिपेंडेंट होता है, लोग बिल्डिंग्स Absolutely. देखने आते हैं, कल्चर और देखने जबकि आते हैं। आर्किटेक्ट्स होते ही नहीं है उस सेक्टर में, है ही नहीं आर्किटेक्ट्स। उस सेक्टर में अगर हमने अपना नॉर्म्स के हिसाब से वहां दिया होता तो आज वो फीमेल्स जो गायब हुई हुई हैं वो कहीं चमक रही होती, एकदम ब्राइट स्टार्स होती वो उस इंडस्ट्री की। मैंने आपको कहा टूर ट्रेवल, हॉस्पिटैलिटी, जर्नलिज्म, मैनेजमेंट, एजुकेशन, ऐसे सारे फील्ड में जो 3rd year ऑफ आर्किटेक्चर के बाद, जिसको मैं एनवायरमेंट, एनवायरमेंट तो पढ़ा भी नहीं है, पर एनवायरमेंट हो सकता था। एनवायरमेंट हो सकता था, बहुत सारी ऐसी मूवमेंट हो सकती हाँ, थी। बहुत सारे। हाँ, एग्जाम क्रैक कर जाती, इतनी लड़कियां आईएएस पीसीएस ये वो एग्जाम क्रैक करती हैं, अगर वो बीएससी बीए करके एग्जाम क्रैक करती हैं तो 3 साल की आर्किटेक्चर करके अगर 1-2 साल मेहनत करके एग्जाम क्रैक करके कहीं ऑफिसर होती तो कहाँ पहुंची होती, कितनी शाइनिंग स्टार्स होती वो लेडीज। मगर अब वो ना तो उस लेवल की प्रैक्टिस कर पाती, करती हैं जितना भी कर पाती हैं फैमिली को मैनेज कर, पर जी, बहुत सारी बिल्कुल फेड आउट हो जाती हैं। वो इसकी वजह से होती हैं क्योंकि 5 साल में ना तो हम उनको उस काबिल बनाते हैं जो प्रैक्टिस की डिमांड है, और ना हम उसको इस काबिल छोड़ते हैं कि वो कुछ और करे। बिल्कुल बिल्कुल। और कंट्री की एजुकेशन सिस्टम में ही विभिन्न नहीं है कि आप एक जगह से दूसरी जगह डाइवर्सिफाई कर सको। जी, डाइवर्सिफाई करने के बहुत ऑप्शंस होने चाहिए, हर बच्चे होना को चाहिए। मल्टी एग्जिट मल्टी एंट्री के ऑप्शंस होने चाहिए, इससे बहुत फर्क पड़ता मुझे याद है एक लड़की को मैंने फर्स्ट ईयर में, वो काफी परेशान रहती थी, तो मैंने काफी डांटा भी था उसको कि तुम आर्किटेक्चर क्यों कर रही हो जब तुमको मन नहीं है। तो सेकेंड ईयर में इवेंचुअली उनके पेरेंट्स को बुला के मैंने उनको बोला कि आप ले जाइए डॉटर को, मत कराइए आर्किटेक्चर, क्योंकि उसको मन नहीं है, हम जबरदस्ती उससे असाइनमेंट करवाते हैं। एंड शी एंडेड अप बिकमिंग अ वेरी गुड डिजाइनर नाउ। सो दिस जस्ट माइनर डिफरेंस है आर्किटेक्चर और डिजाइन में। मैंने शायद एक ही स्टूडेंट को अपने कोर्स में से निकाला, बोलना चाहिए, बट इट आई थिंक इवेंचुअली इट गेव हर मच बेटर अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज उसको जो करने का मन था, फैशन डिजाइन बाय द वे, एंड शी इज मेरी डूइंग वेरी वेल। मानसी ऐसे बच्चों को साथ हमेशा मैं उनके साथ एक्स्ट्रा वर्क करती हूँ कि जी आर्किटेक्चर पैरेलली अगर पेरेंट्स ने डाल दिया है, फीस दे रहे हैं, बट डोंट लेट योर इनर सेल्फ किल्ड जी while you are pursuing this, take out time to pursue your passion, है ना। जी कई बच्चे मेरे बहुत अच्छा ड्रामेटिक्स में कर गए, जी बहुत अच्छा वो करना चाहते थे, हम 1 साल में उसने ब्रेक भी लिया, फिर आके आर्किटेक्चर पूरी भी की, अब वो ड्रामेटिक्स में भी अच्छा काम करता है और आर्किटेक्चर में भी ठीक काम। जी आर्किटेक्चर करना और उसको छोड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर लाइफ राइटली, बिकॉज इट इज गिवन कंडक्ट, ओनली वंस, लाइफ जी इज जी गिवन बिल्कुल वंस, उसे राइटली लिव कर मतलब जीना चाहिए। बिल्कुल। और um, उसके लिए मानसी बहुत जरूरी है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, आप बहुत देर उसके साथ जुड़ी हुई हो, हमारा ये जी सिस्टम ही रीबा के मॉडल पे बेस्ड है, और रीबा का मॉडल और कुछ नहीं था, ड्राफ्टमैन ही ट्रेंड करने के लिए एक रिफाइंड हाँ, मॉडल। हम जब तक बिल्कुल। उस मॉडल को डिस्कार्ड करके नया नहीं सोच सकेंगे, जी, तब तक हम रिफाइंड ड्राफ्टमैन ही प्रोड्यूस कर। एक्चुअली हम अभी डिजाइनर्स ग्रो नहीं आपके भी करते। व्हाट्सएप में ग्रुप में आया होगा टॉप 50 आर्किटेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना। हाँ Every sixth human being on this earth is an Indian, and no हाँ, Indian architects appear in the is first. in the top। yeah, और हम अपने आप में ही 2 लाख लोग हैं, 20 आर्किटेक्ट्स को हम खुद ही नहीं चूज करके उनका लिस्ट बना के सर्कुलेट कर सकते कि यार हमारी कंट्री में भी इतना अच्छा काम करने की कैपेबिलिटी है। जी जी जी, तो बिल्कुल कुछ बिल्कुल बहुत सही बड़ा बात। ड्रॉबैक है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, और उसके जी, लिए आवाज उठाना बहुत जरूरी है। और जब आप तक उठाती रही हैं, मैंने देखा है। मैं नहीं, उठाती जरूरी रही है हूँ, एज जितना टीचर। फर्क एक आदमी की आवाज से फर्क पड़ सकता है उतना रिपल बिल्कुल तो हुआ सिस्टम में। बिल्कुल मैं उसके बिल्कुल लिए थैंकफुल हूँ। मेरे थॉट प्रोसेस के साथ बहुत लोग सिंक करते हैं और इस चीज को बिल्कुल। समझते हैं, और जी मुझे बहुत भरोसा है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ जाने की वजह से कुछ नया रास्ता जरूर निकलेगा।
जब तक ये हम आर्काइक मॉडल नहीं छोड़ते, ये जो सिस्टम है उसे बिल्कुल डिस्कार्ड करके एक नए सिस्टम में शुरुआत नहीं करते, और हम ये जब तक ये रियलाइज नहीं करते, ये हमारी कंट्री में जो बहुत ग्लोरियस हमारा पास्ट है आर्किटेक्चर में, उस समय हमारी जो लर्निंग थी वो बहुत ही मल्टी डिसिप्लिनरी थी। आज हम मल्टी डिसिप्लिन के नाम पे सब्जेक्ट्स बहुत है, मगर पढ़ाने वाला एक आर्किटेक्ट ही है। हम ना तो मल्टी डिसिप्लिनरी ह्यूमन बीइंग के से पढ़ते हैं। तो अगर जब तक हम उस सिस्टम को रिवाइव नहीं करते या समय के साथ हम इंडियननेस नहीं लाते, तब तक सुधार की उम्मीद नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस पे हम अलग से एक सेशन पे चर्चा करेंगे। मैं फिर से वुमेन इन आर्किटेक्चर पे वापस आती हूँ, और मेरा अभी नेक्स्ट सवाल जो है बहुत सिंपल है, एंड इट्स अबाउट द फिजिकल एस्पेक्ट्स जो है, एज अ बीइंग अ वुमन वी आर डिफरेंटली मेड फॉर श्योर, एंड उसके क्या अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंज हैं जो हमारे प्रोफेशन में कभी कभी यूटिलाइज भी किया जाता है, और यूटिलाइज करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि कभी सिचुएशंस ऐसे आए जब आपको लगा कि बीइंग वुमेन इज एक्चुअली बेटर फॉर दिस प्रैक्टिस, और कभी कभी ऐसा भी हुआ कि बीइंग वुमेन इज चैलेंजिंग इन दिस प्रैक्टिस, आपको लगा, या आपको किसी और के बारे में भी पता है कि अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस क्या होती हैं वुमेन के इस प्रोफेशन में? देखो, जहां तक तो मानसी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जी वहां तो मिड लेवल के जो काम है ना, जी देखो प्रोजेक्ट होते हैं कुछ छोटे, कुछ मीडियम लेवल के, कुछ बहुत जी हाई एंड, जहाँ कई लाख स्क्वायर फुट की स्पेस है या जी बहुत बड़े प्रोजेक्ट है। हाँ वहाँ कोई एक आर्किटेक्ट की सिंगल माइंड नहीं चल रहा होता। उसमें तो बड़ी नहीं टीम, बड़े सिस्टम के साथ बहुत बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट काम कर रहे होते, उन प्रोजेक्ट को छोड़ दो। पर जो प्रोजेक्ट रेजिडेंशियल या हाउसिंग के लेवल का प्रोजेक्ट है, हाउसिंग भी नहीं मैं कहूँ, जो हमारा ब्रेड एंड बटर रेजिडेंसेस है, तो रेजिडेंस हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा परसेंटेज में फीमेल की इन्वॉल्वमेंट क्लाइंट साइड से भी होती है। तो जहाँ क्लाइंट साइड से फीमेल है और आप हो और मिलके कुछ चीजें करती हो, तो वो भी सेटिस्फाई ज्यादा होती है, आपको भी ज्यादा मौका मिलता है वहां अपने आप को प्रूव करने का। तो ऐसी मैंने बहुत सारी फीमेल को, ट्राई सिटी में बहुत सारी फीमेल अच्छी प्रैक्टिस करती हैं, मैं उनके साथ टच में हूँ। तो वहाँ वो उनको सेटिस्फेक्शन ज्यादा है। जहाँ फीमेल की इन्वॉल्वमेंट कम होती है, मेल ही ज्यादा डोमिनेटिंग होते हैं, वहाँ चैलेंज है बेटे। लाइफ तो मानसी बहुत बड़ा चैलेंज है, और फर्क है इसमें, कोई दो राय नहीं है कि मेल आर्किटेक्ट और फीमेल आर्किटेक्ट का एक प्लेइंग फील्ड लेवल नहीं है लेवल। हाँ, औरत जितना भी काम करती है उसमें सेटिस्फेक्शन ढूंढती है, अच्छा काम करती है। मैंने नमिता मैम का नाम लिया, उनकी बहुत जी अच्छी इकाई है जिसमें आप उनके सारे प्रोजेक्ट्स देखोगे। मैंने जी 2-3 साल उनके साथ काम किया, कनेक्शन में मैं अब भी हूँ। तो उनका काम बड़ा इंस्पायरिंग है, उनको जी पर बड़ी स्ट्रगल भी है। मैंने उनको बहुत हम्म क्लोजली देखा, तो स्ट्रगल भी बहुत है। अगर यही वो मेन होती तो स्ट्रगल डिफरेंट होती। स्ट्रगल जी तो खैर हर एक की लाइफ में होती है, बट लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं ये। हाँ, एक्चुअली सवाल वही है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, और और वो सोसाइटी कहीं भी ना कहीं समाज सोसाइटी के भी फीमेल कंस्ट्रक्शन के कारण आर्किटेक्ट है। को सोसाइटी भी फीमेल आर्किटेक्ट्स को ऐसा तो समझती है कि ये डिजाइन अच्छा दे देगी, इंटीरियर अच्छे कर देगी, ये हमें ये दे देगी और कम पैसे में कर देगी, है ना। हाँ पैसे की भी डिमांड इसकी कंपैरेटिवली कम होगी, और इसलिए वो काम कर रही हैं। हम्म और इसे अगर इसमें बदलाव लाना है, तो हमें एक तो इंडिविजुअल प्रैक्टिस से कोलैबोरेटिव और बड़ी कॉन्ग्लोमरेट प्रैक्टिस की तरफ जाना होगा। हम्म टीम की तरह, बड़ी टीम की तरह, जिसमें मेल हम्म, फीमेल दिखे ना, एक टीम दिखे। उसको हाँ कोई भी लीड कर रहा है, मगर एक हम्म टीम दिखे काम में, तो तब शायद फर्क पड़ सकता वेरी इंटरेस्टिंग। आपने क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड की भी बात की और डिफरेंस भी बता रहे थे, सो आपको मैं थोड़ा सा फिर से वापस ले जा रही हूँ कुछ साल पहले का, जब आप फील्ड में काम करती थी और जब आप एकेडमिक्स में थी। तो दोनों ही केस में ऑफ कोर्स आपके सराउंडिंग जो लोग होते हैं वो अलग तरीके के लोग होते हैं, तो डील भी अलग तरीके से करते हैं।
But I'm sure in last many years you may have seen the difference. तो पहले जब हम फील्ड में जाते थे तो एक the way people used to respond to a woman architect और आज में बहुत बदलाव है. So I just wish to understand from you, how was it in your case when you were practicing? A contractor हुआ, labor हुए, other dealers होते हैं, project managers होते हैं. How was it in your case in the previous years, and do you see things are changing now in the current time? Like women Manasi, architects की acceptance? Manasi, my approach was, I was a sports person and I'm a very strong NCC cadet. Day one, I was not at all goody. I used to wear clothes which are fit for site work. मैंने आपसे कहा, मैंने नमिता सतनाम सिंह को ज्वाइन ही किया था तो पहले दिन से ही मुझे साइट वर्क दे दिया गया था, क्योंकि मेरा ड्रेसअप और मेरा कॉन्फिडेंस उस ढंग से था. एक बात. दूसरी जो चीज बहुत मेरे फेवर में वर्क की, वो थी मेरे को वर्नैकुलर लैंग्वेज में बात करना. साइट पे समझ थी थोड़ी, और ऐसी समझ थी कि आप किसी को भी, अगर वहां कोई मिस्त्री आपसे उम्र में बड़ा है या कॉन्ट्रैक्टर आपसे बड़ा है, तो अगर आप गो डाउन करके उनसे मैं आर्किटेक्ट हूँ ऐसी फीलिंग के साथ नहीं, मैं एक हम्बल डिजाइनर हूँ और मैं ये सोचता हूँ, तो आप इसमें अपने इनपुट्स दो. तो बहुत बार मेरे प्रोजेक्ट्स में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला अच्छे पुराने कॉन्ट्रैक्टर्स से, जो बहुत बुजुर्ग थे और बहुत अच्छे तरीके से बिल्डिंगें बनाते थे. खास करके वर्नैकुलर बिल्डिंग, गुरुद्वारा पर मैंने काफी बिल्डिंग्स करी, तो उसमें उनकी समझ और ऐसी बुक्स की समझ जो कॉलेजेस में नहीं पढ़ाई जाती. अभी वास्तु तो अब पढ़ाया जाता है, विश्वकर्मा दर्पण कभी भी नहीं पढ़ाया गया. और विश्वकर्मा दर्पण कितना इम्पोर्टेंट ट्रीटी है टू मेक रिलीजियस बिल्डिंग्स और टू मेक सच बिल्डिंग्स. तो उस चीज की समझ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मानसी बहुत सुपरफिशियल है ही नहीं, ऑलमोस्ट है ही नहीं, है ही. और उस पे कोई काम बात भी नहीं कर रहा. प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट एजुकेशन का नुक्स तो निकाल रहे हैं, मगर एजुकेशन सारी प्राइवेट हाथों में ज्यादा गई हुई है. तो वहां काउंसिल क्वांटिटी देख रही है, क्वालिटी पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा. ध्यान नहीं. तो बहुत सुपरफिशियल. पर जब सीखने का आपका बेसिक मेरे को सवाल है कि साइट पे कैसे होगा, तो साइट में अब बहुत फर्क है, माइंडसेट में बहुत फर्क है. समाज ही बहुत खुल गया, पर उस समय हमें बहुत घूर के तो देखा जाता था. पर जब हम बहुत प्यार से बात करते थे, आराम से बात करते थे और उनको थोड़ा रिस्पेक्ट देके बात करते थे, तो 2 विजिट के बाद वो कंफर्टेबल हो जाता था, एक्सेप्टेंस आ जाता था. बैक बाइटिंग फिर भी होती थी. ये सुनने को मिलता था, लड़की सी आई है, पता नहीं क्या हमें सिखाएगी, क्या हमें क्या समझती है अपने आप को, हमें सिखाएगी. जब ऐसी बातें सुनी तो ऐसा लगा कि नहीं, सिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, सीखने की कोशिश करनी चाहिए. अगर 2 बार वो कुछ सिखा के अपने आप को प्राउड फील करेगा, ये पेट्रियार्कल सोसाइटी है, वो अपने आप को बड़ा शेखी समझेगा, तो तीसरी बार वो आपकी बात मान जाएगा. आपको पेशेंस ही तो रखनी है. फिर उसको समझ आ जाएगा कि हाँ नहीं, आप जो कह रही हैं इनको आता है. पर आने के बाद भी ये तो मानसिक कॉलेज प्रैक्टिकल इनपुट नहीं दे पा रहा भाई. हमारे इंडिया में, मतलब मैंने 5 साल BArch, 2 साल मास्टर्स, 3 साल PhD करी, तो प्रैक्टिकल इनपुट जो चाहिए वो तभी आ सकती है अगर प्रैक्टिसिंग आके ज्यादा, या स्टूडेंट जाके कंटिन्यूसली. जैसे मैंने आपको पहले भी इनिशियली कहा, NDR एक सिस्टम था जिसे बंद कर दिया गया. वो 7 साल में होती थी और हर स्टूडेंट सिर्फ 3 घंटे पढ़ता था, बाकी का टाइम वो एक्टिव प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होता था. तो वो गुरुकुल सिस्टम ही तो हो गया. उस सिस्टम को हमने किल्ली कर दिया. हमें सिस्टम ठीक ढंग से सोचने होंगे, हमें वेरिड सिस्टम सोचने होंगे, उनकी कोएग्जिस्टेंस सोचनी होगी. हमें बहुत काम करने वाला है भाई, एजुकेशन के सेगमेंट में बहुत काम है. हमको सबको बहुत काम है. मुझे तो अभी तक ये भी दुख होता है कि वुमेन इन आर्किटेक्चर कोर्स भी नहीं है, बाय द वे, जो कि होना चाहिए. जेंडर इन आर्किटेक्चर. मेरी इतने साल की रिसर्च और इतना कुछ पढ़ने के बाद, अगर मानसी दिल से मुझे पूछो कि मैडम एक रिकमेंडेशन दे दो,
तो मैं कहूंगी बहुत बार बात होती है आर्किटेक्ट एक्ट को रीफ्रेम करने की, आर्किटेक्ट एक्ट को ये करने की, आर्किटेक्ट एक्ट को वो करने की, कितने फोरम में कितनी बात होती है ना। अगर मुझे पूछो तो मैं कहूंगी सिर्फ आर्किटेक्ट एक्ट को रिपील करके देखो, कितना कुछ बदल जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली सबको कि थोड़ा रीड भी डिमांड करना है। आर्किटेक्ट को आर्किटेक्ट्स एक्ट का कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, ये ये भी इंट्रोस्पेक्ट करके आर्किटेक्ट्स खुद को देखें कि हमें हम्म, कितना शॉर्ट टर्म गेन हुआ या हमने कैसी पोजीशन बनाई, आज हमारी सिचुएशन के लिए कौन जिम्मेवार है। और अगर ये एक्ट रिपील होके हम लेवल प्लेइंग फील्ड में इंजीनियर्स के साथ और बाकी के प्रोफेशनल के साथ काम करें तो हम कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो सकते हैं। क्योंकि हम बिल्कुल बहुत हमारा छोटे प्रेजेंस भी दायरे में काम बढ़ेगा। कर रहे थे, कुएं के मेढक की तरह काम कर रहे थे, इसलिए हमें जो स्ट्रेंथ आनी चाहिए थी वो बिल्ट ही नहीं हो पाई। हाँ बिल्कुल, एक बहुत अच्छी बात रखी, क्योंकि ये हमारे आप एजुकेशन में दो हमको लाख में से 2 लाख कलेक्टिव नहीं आर्किटेक्ट्स सिखाते। में से, हाँ 2 लाख आर्किटेक्ट्स में से बहुत दिग्गज 200 नाम भी नहीं आप ले पाओगी। आपके मतलब 20-25 के बाद ही आपकी वो रुकना शुरू हो जाएगा। बहुत ले हाँ हाँ, लोगी तो 50 नाम ले लोगी। दो जी जी लाख बिल्कुल। आर्किटेक्ट हैं इंडिया में। हाँ फिर भी कम है नेशन बिल्डिंग के लिए जितनी जरूरत है। तो एक्चुअली मेरा एक सवाल इस पे भी है, जो कि लास्ट सवाल है, बट अब मैं पेनल्टीमेट क्वेश्चन में पहुंच चुकी हूँ। तो थोड़ा हमको टाइम का भी अब ध्यान रखना है, बिकॉज बाद में हमको इस पूरे कॉन्वर्सेशन को एडिट करके रखना है। तो मेरा पेनल्टीमेट क्वेश्चन है, आई वुड लाइक यू टू इमेजिन अ सिचुएशन। अभी आपने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की थी, तो उस लेवल प्लेइंग फील्ड को मैं मानती हूँ कि 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। तो अब मुझे उस 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स तक पहुंचना है, तो मेरा वो टारगेट रखना पड़ेगा, तब जाके कहीं मैं 80-75 मुझे अचीव होगा। तो मेरा जो अगला सवाल है वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। तो इमेजिन करिए, देश में ज्यादातर मोर एंड मोर आर्किटेक्ट्स आर फीमेल आर्किटेक्ट्स हु आर विजिबल एंड हु आर ऑल्सो मोर फेमस। इस सिचुएशन में हमारे बिल्डिंग्स, हमारे नेबरहुड्स, हमारे सिटीज के बिल्ट फॉर्म नेचर में क्या क्या चेंजेस आएंगे? दिस इज द ओनली आर्किटेक्चरल क्वेश्चन आई हैव इन माय इंटरेक्शन। फेमिनिज्म, जो फेमिनाइन एनर्जी है जी वो बहुत ही अ, जैसे मून की तरह है। जी सन है और मून है, कूल एनर्जी है ना। जी चाहे आपको क्वेश्चन हो सकता है कि सन की एनर्जी से तो मून पे लाइट आती है, दिस दैट, जी। मैं उसकी नहीं बात कर रही। हम्म। मतलब पर मैं बात कर रही हूँ, भगवान ने अगर दो चीजें बनाई हैं तो कुछ सोच के बैलेंस करने के लिए बनाई। जी अगर एक में थोड़ा एग्रेशन ज्यादा है तो एक में थोड़ा ठहराव ज्यादा है। तो जी। अगर वुमेन उसको कंट्रोल करेंगी तो ठहराव थोड़ा ज्यादा पाओगे, मोर हम्म ह्यूमन अप्रोच पाओगे, हम्म, थोड़ा पॉजिटिव साइड में चीजें पाओगे। मगर जी अगर मैं कहूँ बहुत आगे बढ़ने की स्पीड से आगे बढ़ पाओगे तो शायद थोड़ा कम बढ़ पाओगे। मैं जी। किसी एक की साइड नहीं लेना चाहूंगी, मगर एब्सोल्युटली। फेमिनिज्म होने से बिल्डिंग मोर ह्यूमन टच में होगी, पर एग्रेशन हम्म कम होगा। अभी हमारा एग्रेशन ज्यादा है, क्लाइमेट चेंज की तरफ हम ज्यादा तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। बातें तो हम बहुत कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी की, पर अगर क्योंकि फीमेल घर चलाती है तो बहुत सारी फीमेल सस्टेनेबल मॉडल से ही घर को चलाती है। तो उनके जी हाथ में अगर हाइपोथेटिकल सिचुएशन ही तो आपने, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन में अगर मैं जाऊं तो वो ज्यादा नेचर के साथ जुड़ के हम्बल डिजाइन देगी। बस इतना मेरा हम्म। कहना Cities will be more nature based, nature oriented, और है। हाँ, ह्यूमेन होगा, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमेन, एक थोड़ा शब्द। ह्यूमेन जी ज्यादा, बिल्कुल थोड़ा ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल। एग्रेशन थोड़ा दैट कम होगा। बिल्कुल। मतलब जो हाँ अब तरक्की, जो दिखता है, मैन की वर्ल्ड में जो बड़ी तेजी से तरक्की, हर चीज को वो दौड़ बहुत लगी एक हुई है, अलग लेवल पे ले जाते हैं, शायद दौड़ फीमेल उस लगी हुई लेवल है। पे नहीं ले जाएंगी, मगर हाँ उसे पैरेलल रखेंगे। जी, जो दौड़ है उसमें थोड़ी ठहराव आएगा, जिसको कि आज हम बोलते भी है कि हमको वी हैव टू ग्रो स्लो, वी हैव टू गो स्लो, ग्रो स्लो। तो ठहराव जो है, जो आपने बात कही, बहुत अच्छी बात रखी आपने, सस्टेनेबिलिटी का वो एक इम्पॉर्टेंट पहलू है। दैट ब्रिंग्स मी टू द लास्ट क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आपका मैसेज यंगर जनरेशन के लिए। आपने एक्चुअली पूरे कॉन्वर्सेशन में मैसेज रखा है यंगर जनरेशन के लिए।
पर हमने ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली रखा है फॉर 2 रीजंस। पहला जो रीजन है वो है कि क्योंकि हमारा प्रोफेशन अभी भी माइनॉरिटी है, और आपने इस बारे में भी अभी पिछले क्वेश्चन में ही बात की थी कि हम बाकी प्रोफेशंस के साथ हाथ मिला के चलते तो शायद हमारा प्रोफेशन और वुमेन और भी ज्यादा अच्छा कर पाती। तो आपका मैसेज जो यंगर जनरेशन अगर आर्किटेक्चर में आना चाह रहे हैं या आने वाले हैं, what it is for people to join architecture, why they should join architecture, why it is important, that is my first part of the question. And second part of the question, दोनों मैसेज यंगर जनरेशन के लिए, यू मे बी शॉर्ट विथ सम लाइंस। सेकेंड पार्ट जो है कि यंगर जनरेशन को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि ये प्रोफेशन जो है थोड़ा एनजेंडर हो जाए, थोड़ा हम लेवल प्लेइंग फील्ड की तरफ बढ़ सके, थोड़ा इक्विटेबल हो जाए, तो क्या उनको ध्यान रखना चाहिए? तो ये मेरा लास्ट सवाल है आपसे, 2 भाग में। मेरा मैसेज यंगर जनरेशन से ज्यादा जो एग्जिस्टिंग जनरेशन है, जो ये क्रिब करती रहती है, क्वैक है क्वैक है क्वैक है प्रोफेशन में, उन्हें ये समझना होगा कि कहाँ हमारी कमी है और हमारी कमी दूर कैसे हो सकती है। इंडिविजुअल लेवल पे हर इंसान कमी को दूर करने की कोशिश करता है, मगर कलेक्टिव लेवल से इस प्रोफेशन की कमियां दूर हो सके, ऐसी कोशिश होनी चाहिए। अगर हमारी ट्रेनिंग एक मल्टी डिसिप्लिनरी बड़े एनवायरनमेंट में हुई होती, हमारे सारे आर्किटेक्चर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन है वो क्लोजली गार्डेड सीलोज हैं, बिल्कुल बंद कुएं की तरह, और उसमें पानी भी गंदा महक वाला, ऐसा सा सिचुएशन है। जबकि अगर यही बड़ी नदी या समुंदर की तरह ट्रेनिंग होती कि उसी फील्ड में उसी इंस्टीट्यूशन में हर कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात होती। आपने पता नहीं मानसी, शायद आप उस एक प्रेजेंटेशन में थे जिसमें मैंने मल्टी डिसिप्लिनरी एकेडमी की बात करी थी कि मल्टी डिसिप्लिनरी एकेडमी में मैंने 12 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स मैं हमेशा एक यूनिवर्सिटी का सपना देखती हूँ जिसमें कंस्ट्रक्शन सेक्टर के सारा काम उस एक यूनिवर्सिटी में हो रहा हो और हर बच्चा दूसरी चीज को समझ पा रहा हो, होलिस्टिक सी अप्रोच से बच्चे बाहर निकले। मतलब इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन मैनेजर, हर चीज उसके लिए पूरी बात मेरे को घंटा अभी हमारे पास ऐसा नहीं है ना टॉक, पर आई ऑलवेज इन्विजन यूनिवर्सिटी ऑफ बिल्ट एनवायरनमेंट, जहां बिल्ट एनवायरनमेंट की सारी बात एक छत के नीचे हो, ऐसा एक सपना देखती हूँ। और वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू मुझे दिखता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की परमिशन से मुझे दिखता है, और वही एक रास्ता मुझे दिखता है कि हाँ ऐसे हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ बिल्ट एनवायरनमेंट एक्ट रिपील करने से बहुत मुझे फायदे दिखते हैं। कुछ शॉर्ट टर्म नुकसान हो सकते हैं मगर लंबे रन में आर्किटेक्ट ज्यादा मजबूत हो जाएगा, उसका नाम बेशक बिल्ट एनवायरमेंटलिस्ट हो जाएगा मगर वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर प्रोफेशन उभर के आएगा और इस प्रोफेशन से बहुत डिफरेंट होगा, बहुत डिफरेंट होगा जिसको मैं देखती हूँ। ठीक है जी। तो ये तो मैसेज हुआ मेरा, जो कि वो मिलके कलेक्टिवली सोचें कि हम कहाँ इतने गलत हो गए, हम क्यों इतने गलत हो गए और इसे सुधारने का क्या तरीका हो सकता है और एजुकेशन में रिफॉर्म करने का क्या मेथड हो सकता है। यंगर जनरेशन अगर आर्किटेक्चर में आती है तो वो ये समझ ले कि आर्किटेक्चर अब वो पुराने वाला डिजाइन नहीं है। टीचर भी समझ लें कि 4 वैसे लाइनें लगा के स्क्रिबल करके डिजाइन वाली सिचुएशन नहीं है, क्योंकि आज क्लिक ऑफ द माउस पे आपको लाखों डिजाइन अवेलेबल है और एआई ने आके तो वो सारा कुछ ही ओवर पावर कर लेना है। पर उसमें डरने की बात नहीं है। लाइट आई थी तो उसने सारी मोमबत्ती इंडस्ट्री खत्म कर दी थी कि नहीं कर दी? स्टीम इंजन आया था तो मैनुअल लेबर सारी रिडंडेंट हो गई थी कि नहीं हो गई? डीजल आने से क्या सारे पशु वो जो घोड़ा गाड़ियां होती थी सब खत्म हो गई है ना। पर हर जब नई चीज आती है तो नए चैलेंज, तो यंगर जनरेशन फ्यूचरिस्टिक चीज की तरफ देखे, इस प्रोफेशन को अगर अडॉप्ट करती है तो बहुत खुद मल्टी डिसिप्लिनर रहे, सेल्फ अवेयर रहे और अपने सेल्फ के साथ कनेक्ट होके अपना पैशन को परस्यू करती रहे। पुराने लकीर के फकीर होके अब आगे आर्किटेक्चर नहीं चलने का। इंडस्ट्री 4.0 क्यों, अभी इंडस्ट्री 5.0, इंडस्ट्री 6.0, इंडस्ट्री तो बड़ी तेजी से बढ़ती ही जा रही है। हम कोप अप नहीं कर रहे तो कमी तो हम में है भाई।
हाँ हम ही चाहते हैं कि हमें स्पेशल ट्रीटमेंट मिले बिना ये प्रूव किए कि हम स्पेशल कैसे। कहने से तो हाँ कुछ नहीं हो जाता मानसी, करके दिखाना हाँ पड़ता है। और करके बिल्कुल। दिखाने के लिए जो स्किल चाहिए, उस स्किल के ऊपर कोई बात ही नहीं है, चर्चा ही नहीं। तो बहुत हाँ कुछ होना है मानसी अब। और जी जी बिल्कुल। मेन वुमेन वुमेन इन आर्किटेक्चर पे बात हुई, तो मेरा यही है कि मैंने एज ए वुमेन जितना खुद को समझा आपको एक्सप्रेस करने की मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आ, इस क्वेश्चन के साथ और आपके रिस्पांस के साथ एक्चुअली हमारा Q&A सेशन कंप्लीट होता है। और नाउ इज ऑल्सो द टाइम, अगर आपको कुछ सवाल मुझसे पूछना है इस रिसर्च के बारे में, मेरे बारे में, दिस इज द टाइम, अदरवाइज आई डू द फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स। हाँ नहीं मानसी, आपने मेरे साथ पहले बात की हुई है और मैंने उस समय भी आपको कहा था कि मानसी एक अच्छा काम कर रही हो, कुछ तो मतलब बड़ा कंस्ट्रक्टिव कर रही हो। आज जो काम कर रही हो उसका रिजल्ट जब दिखेगा इन द फॉर्म ऑफ कॉफी बुक और इन द फॉर्म ऑफ दीज वट एवर यू आर डूइंग क्वाइट अ लॉट ऑफ वर्क विद द स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन दैट यस, ये इशू को सामने लाना चाहिए, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। और आप बात कर पा रही हो और ऑलमोस्ट हाफ का टारगेट पार कर गई हो। माय जी बेस्ट विशेस कि वो जल्दी से 100 पूरी हो, फिर 500 पूरी हो, क्योंकि मेरे को बिल्कुल। 1 लाख दिख रही हैं। और 1 लाख जी में बहुत सारी प्रोफेशन छोड़ गई दिख रही हैं। और बिल्कुल। प्रोफेशन छोड़ने के बाद वो बीएड करके टीचर भी नहीं बनी, इसका मुझे अफसोस भी है। हाँ वो एक अच्छी मीडिया प्रोफेशनल नहीं बनी, मुझे उसका अफसोस है। वो एक टूर ट्रेवल गाइड नहीं बनी, मुझे उसका अफसोस है। वो बहुत कुछ बन सकती थी, वो नहीं बनी, उसका मुझे अफसोस है। वी लॉस्ट सो मेनी फीमेल आर्किटेक्ट्स इन द कंट्री। बिल्कुल। उन्हें ऐसे बचाने से नहीं बचेंगी, उनको ठीक से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जब लड़की पढ़ रही है तो उसके सामने 3rd ईयर के बाद, और जब एग्जिट करना चाहे यार एग्जिट करने का मौका होना चाहिए, और जहां डाइवर्सिफाई करना चाहती है वहां मौका होना चाहिए। मानसी, हमारे ही कंट्री के रूल रेगुलेशन कहते हैं कि आप किसी भी डोमेन में कुछ क्रेडिट अर्न कर लो तो उस डोमेन की आप मास्टर्स कर सकते हो। जी काउंसिल तो अपने ही उसमें गायब है, उनको इन चीजों से कुछ नहीं लेना देना। तो होना चाहिए, पर होना थैंक यू चाहिए। सो मैं मच। दोष भी नहीं देती, क्योंकि काउंसिल को दोष देने से कोई हल नहीं निकलता। कोई फायदा नहीं। हल तो निकलेगा अगर सब मिल के उठेंगे और कुछ बनाएंगे। एब्सोल्युटली, आपने बहुत अच्छी बात कही कि एज अ कलेक्टिव हमको इस पे एक्चुअली थिंक करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए हमारे प्रोफेशन को, कि हाउ टू टेक इट फर्दर, हाउ टू हैव अ डीपर इम्पैक्ट इन द सोसाइटी। ये भी बात आपने बहुत अच्छे से कही। और एक बहुत ही इमोशनल बात आपने कही कि 1 लाख बाहर गर्ल्स हैं, हम लोग दोनों भी उसमें हैं। और ये पूरा जो एफर्ट है वुमेन इन आर्किटेक्चर का, जो रिसर्च है, यूट्यूब सीरीज चल रहा है, हम एक छोटा कॉफी टेबल बुक बनाना चाहते हैं ताकि सबको पता रहे कि दीज आर द वुमेन हु वॉक द पाथ ऑफ द प्रोफेशन। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कहीं जाओ तो पता चलता है, पूछे कि 5 वुमेन आर्किटेक्ट्स के नाम बताओ, तो लोग बता नहीं पाते। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ज्यादातर जो मेरी रिसर्च से मुझे पता चलता है कि वी रियली लैक्ड रोल मॉडल्स। मैं जब आर्किटेक्चर पढ़ रही थी तब मेरे पास दीदी कॉन्ट्रैक्टर नाम के अलावा कोई नाम ही नहीं था। मतलब 15-20 साल तक मेरे पास कोई नाम नहीं था। उसके पहले जब तक मैंने जब बृंदा सोमाया जी के बारे में नहीं सुना था, मैं दिल्ली के ज्यादा आर्किटेक्ट्स को मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। तो रोल मॉडल्स बिल्डिंग जो है, ये एक एफर्ट है वुमेन इन आर्किटेक्चर से। वी वांट टू बिल्ड रोल मॉडल्स where we are not only looking for great women, we are looking for work which has been done by many women, and it's up to people to decide what is great or not great. I think you are doing great work, you think I am doing great work, and that is where hand holding, जो sisterhood है, वो बहुत जरूरी है। वो कई सालों तक मिस रहा इस प्रोफेशन में। जो सही कोशिश कहा। की जा रही है इस थोड़े से एफर्ट के साथ, एंड आई होप यंगर जनरेशन इज गोइंग टू लुक at this video and listen to you with lot of you know attention, as well as understand the nuances of what she's trying to talk about, and take it further. You know, there are मानसी, alternate मैं थोड़ा options. सा ऐड करना चाहूंगी Go ahead. मानसी, थोड़ा सा, क्योंकि मुझे लगा कि आप Sure. डाइवर्सिफिकेशन की भी बात करेंगी। तो जी रिटायरमेंट के बाद मैंने बाउंस बैक करके प्रैक्टिस नहीं करी, क्योंकि मुझे समझ आ गया कि प्रैक्टिस में जो चीजें चाहिए
वो बिल्कुल अलग है। और समय मुझे जो बदल गया करना है, मुझे जो करना है, जहाँ मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलती है, तो मेरा जी फैमिली बिजनेस था मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एलिवेटर्स। और एलिवेटर जी के डिजाइन में मैं अपने हस्बैंड की हेल्प पहले से ही कर रही थी। तो मैंने जी रिटायरमेंट के बाद आई एम दी ओनली फीमेल आर्किटेक्ट इन दी रादर द ओनली आर्किटेक्ट इन कंट्री हु इज डिजाइनिंग एलिवेटर्स। Wow, this is, and I'm sorry I didn't ask this question. What is life worth doing with you after retirement? Because I think you are the first person for me also to communicate and do this interaction, who is a post-retired person. Because when I reached out to you, I also did not have had a clue about this. But thankful to you that you raised this point. Actually, जो मैंने स्टडी में ये भी देखा है कि many of the women have diversified from architecture profession. जो आपने बोला ना, बहुत सारी गर्ल्स नहीं, पता नहीं कहाँ गई. I am one of those girls. I will be very honest on that. I Uh, know many of them. I know Many many of them. of them. So 33 years many or of 35 us years had of my to find teaching. out a way. Yeah, many of us had to find out a way, and I am fighting another battle in this profession. I really want architecture to acknowledge that water is part of architecture. It is still not part of architecture. Women to fir bhi is part of architecture, by the way. Water is still not part of architecture. There is no single institute in this country, no school, no department of architecture in this country is teaching about water. It's not teaching about gender, but it is not also teaching about water. So I just think of how can a built environment succeed without talking about water and gender. Many a times I get very, energized or angry, you may call it, and say that अगर आपको पानी की जरूरत नहीं है तो आप बगैर पानी के बिल्डिंग बनाइए. बगैर पानी की बिल्डिंग बनाइए, बिल्डिंग में पानी मत ले जाइए और बिल्डिंग से पानी बाहर मत निकालिए. अगर अपना पानी बन तो जाएगा ही अगर नहीं, सर्वाइवल ही नहीं पॉसिबल है। तो और फिर पानी पढ़ा की क्यों नहीं रिस्पेक्ट रहे हैं? करना हमारे सभी स्क्रिप्चर में लिखा है पर कि वो हमारे माता पिता एजुकेशन की में तरह नहीं है. है। माता आर्किटेक्चर पिता की तरह। एजुकेशन में नहीं है मैम. तो जस्ट मैं एक बात की बहुत बात रख रही सुपरफिशियल हूँ. है ना, हर बात हम बड़ी सुपरफिशियल लेवल पे कर रहे हैं। हाँ, तो तो हमारी आर्किटेक्चर फॉर एजुकेशन, क्लासेस हो रही है. मैं सिर्फ बीआर की एजुकेशन की नहीं नहीं नहीं, निंदा कर पूरा ही रहा, पूरा एजुकेशन आर्किटेक्चर सिस्टम फॉर जो है। क्लासेस हो रहा है, आर्किटेक्चर हाँ, फॉर मासेस नहीं हो रहा है. ये हाँ। हमारे एजुकेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, नहीं, जिसमें आप क्लासेस जैसे. मासेस की भी नहीं बात, हमारा जो एजुकेशन हो रहा है वो कॉलोनियल माइलों के साथ हो रहा है, और वही माइंडसेट नहीं बदला कि हमें रिफाइंड ड्राफ्टमैन प्रोड्यूस करने हैं। हम जी बात इनोवेशन की और ज्यादा जो जरूरत है उसकी तो बात ही नहीं करते। तो बिल्कुल हमारा बिल्कुल. सिस्टम ही गलत फुटिंग्स पे है, और गलत बिल्कुल वी फुटिंग्स हैव पे टू कोई भी चेंज दैट. बिल्डिंग जितनी मर्जी में बड़ी बना लो, नीचे से फुटिंग गलत है तो गलत ही है भाई, उन्हें सुधार। बिल्कुल बिल्कुल. इस विषय पे हमको अलग से चर्चा लेनी पड़ेगी. बट फॉर नाउ आई हैव टू टेक अ कॉल टू क्लोज दिस कॉन्वर्सेशन. सो थैंक यू सो मच प्रभजोत मैम फॉर द एनलाइटनिंग इंटरेक्शन. मे यू रिमेन एन इंस्पिरेशन टू people like me and to many more out there. I am also grateful to have learned about your endeavors, and thanks that you added the last bit of it, because it's a very crucial journey of life when you officially take yourself out of the official system, but you are still in another official system. So diversification is an integral part of the profession. Many people do it before, and some people take a special call after they think they would like to take different endeavors. I wish you best to continue your endeavors, what you are doing today, and also hope that you will keep us posted about it. From my end, we shall continue with our conversations with women for talking about women in architecture. Thank you so much once again, and please take care. And thanks a lot, ma'am. My best wishes, Manasi. Keep Thank doing you. good work. You Thank you. inspired me also. Thank you.